আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা खबर। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने युवाओं से जनप्रतिनिधि बनकर राजनीति में भाग लेने की अपील की है। रविवार को त्रिपुरा विधानसभा में आयोजित युवा संसद में मुख्यमंत्री ने यह अपील की। रविवार को त्रिपुरा विधानसभा में पहली बार आयोजित हुआ युवा संसद। राज्य के 8 जिलों से चुने गए 40 प्रतिनिधियों ने इस युवा संसद में हिस्सा लिया। युवा संसद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है। एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के उद्देश्य से युवाओं को जनप्रतिनिधि बनकर राजनीति में हिस्सा लेना आवश्यक है। एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा कथा बोलছি আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত বলছে। এটা একটা কিন্তু চড়াই আমরা বারবার বলছি দ্য শো মাস্ট গো অন। তো আগামী দিন আজকে আমরা আছি, কালকে নেক্সট জেনারেশন আসবে, নেক্সট টু নেক্সট জেনারেশন আসবে। তো আপনারাই হচ্ছেন ফিউচার। তো এখান থেকে এখন থেকেই যদি আমরা অনেক সময় কি করি, রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনীতির নাম শুনলে অনেকে আসতে চায়, এমন একটা অবস্থা হয়েছে। সেই জায়গায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন না, আমাদের যে ইয়াং বিশেষ করে ভারতবর্ষ 18 থেকে 25 বছরের কথা বলছেন, এবং আমাদের হিউম্যান রিসোর্স বলা যায় সারা পৃথিবীর মধ্যে 60 থেকে 65% হিউম্যান রিসোর্স হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষে, তদ্রুপ ত্রিপুরাতেও। তো তাদের যদি পার্টিসিপেশন না থাকে, বিভিন্ন প্রবলেম থাকবে, প্রবলেমের সলিউশন কিভাবে করা যায়, उनके जो चिंता, उनके जो भावना, सेगुलो विषय निये आलोचना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने युवाओं से इस प्रकार के मंच का उपयोग एक देश एक चुनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया जाने का आह्वान किया। एक जाति एक निर्वाचन, আমরা সবাই জানি যে নির্বাচন আমাদের জন্য মানে 5 বছরের জন্য আমরা নির্বাচিত হই, কিন্তু এই নির্বাচন নিয়ে আমরা সারা বছর ব্যস্ত থাকি। ফাইল কিছুদিন গেলে ফাইলে সাইন করা যায় না, কোড অফ কন্ডাক্ট লিখে যায়। তো এই বিষয়ে সুন্দরভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে এই ধরনের একটা মানে জেলা স্তরে এই বিকশিত ভারত যাতে আরো প্রশস্ত হয়, তার জন্য এই যে আমাদের টপিক উনি রেখেছেন। রাজ্য স্তরে কি রেখেছেন, ভারতীয় সংবিধানের 75 বছর এবং আমাদের অধিকার, কর্তব্য এবং অগ্রগতির যাত্রা। কি অদ্ভুত, কত সুন্দর। মানে আমরা যেটা ভাবিনি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভাবান এবং আমাদের ইনস্টিল করে আমাদের ব্রেনে। এখন তখন আমরা বুঝি না এটা তো খুব প্রয়োজনীয় টপিক, আমরা তো চিন্তা করি না। তো আজকে যেভাবে দেশকে সুরক্ষার দিকে হোক, আর্থিকভাবে হোক, মানুষের মান উন্নয়নের কথাই যদি বলি, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হোক, যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়েছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হোক, সব দিকে যেভাবে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, সেই জায়গায় আমাদেরও উচিত, আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশন আছে তাদেরও মানে হাত, যেহেতু এই ধরনের একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছে, আমরা উই শুড গিভ आवर बेस्ट। देश के विकास के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2019 में यह कार्यक्रम शुरू किया था। राज्य स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर भारत को आगे बढ़ाने के बारे में युवाओं के विचारों पर प्रकाश डाला जाता है। त्रिपुरा विधानसभा में पहली बार आयोजित युवा संसद में चयनित 3 प्रतियोगियों को बाद में दिल्ली में केंद्रीय स्तर की युवा संसद प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य दंत महाविद्यालय में एमडीएस कोर्स शुरू करने के संबंध में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। रविवार को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दी। बीडीएस के बाद अब एमडीएस कोर्स राज्य दंत महाविद्यालय में शुरू किया जाएगा। इस संबंध में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। रविवार को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित दंत चिकित्सकों के एक प्रशिक्षण कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह जानकारी दी। इस क्षेत्र में पीएम डिवाइन परियोजना के तहत दंत महाविद्यालय के नए भवन के निर्माण के लिए 202 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है, ऐसा भी बताया मुख्यमंत्री ने। আমাদের দরকার, আমি কথা বলছি এটা, আর মোবাইল ব্যানার কত যাবে? 1 করোড়। যদি আমাদের এত বড় ডেন্টাল কলেজ করতে পারি, কত করোড়?
এর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী PM ডিভাইনে আমাদের 202 কোটি টাকা দিয়েছে ডেন্টাল যে বিল্ডিং করার জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার। তাহলে 1 কোটি আমরা একটা মোবাইল ব্যাংক কিনতে পারবো না? এখানে স্টুডেন্টদের জন্য আমি বারবার চিন্তা করি যে BDS না, আগামী দিনে MDS স্টার্ট করবো আমরা। এর মধ্যে আমার কাছে যা খবর, নেক্সট ইয়ারের জন্য DCI আমাদেরকে অনুমোদন দিয়েছে। কাগজটা আসার বাকি। আই ডোন্ট নো ওয়েদার ইট হ্যাজ কাম অর নট, বাট অলরেডি আই গট। সো এখান থেকে আমাকে জানানো হয়েছে। তো এই বাড়তি সুবিধাগুলো আমি যখনই শুনি যে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে, DCI প্রবলেম, আমি তখন লাগাই আমার কানেকশন, কি ব্যাপার, কেন দেরি। তো দেখা যায় এগুলো খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়ে যায়। নেক্সট ইয়ার ভর্তিও খুব। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित डेंटिस्ट पॉपुलेशन रेशियो जहां 17,500 होना चाहिए, वहीं त्रिपुरा में इसका आंकड़ा 17,000 है, ऐसा बताया मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। डेंटिस्ट टू पॉपुलेशन रेशियो बोले এটাকে, সেখানে 7,500 আর ত্রিপুরাতে স্টেটে এখন আমরা কিন্তু 1,700 আছি, 7,000 আছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের এখানে কিন্তু রেশিও মানে আমাদের এখানে কিন্তু অনেকটা বেটার পজিশনে আমরা আছি। এবং এর মধ্যে প্রায় 28%ই কিন্তু গভর্নমেন্ট সেক্টরে আমাদের এই ডেন্টাল সার্জনরা। ন্যাশনাল লেভেলে কত? 2%। আমাদের যারা বন্ধু বান্ধবরা আছে অনেকে যখন জিজ্ঞেস করে, তৎকালীন সময় জিজ্ঞেস করতো কোথায় আছেন, আমি বললাম এই তো কলেজ হসপিটালে জয়েন করেছি ত্রিপুরা ডেন্টাল সার্ভিসে। তো ওদের কাছে অবাক লাগে, ডেন্টাল পাশ করে তারপর মানে চাকরি। ওরা কিন্তু নিজেরাই এন্টারপ্রেনার, আমি বলবো এন্টারপ্রেনার হিসাবে ওরা কাজ করে এবং বেতন যা পায় এর 10 গুণ কামায় ওরা। এইরকম অবস্থা ছিল। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रज्ञा भवन में आयोजित इस कार्यशाला में बताया कि राज्य के दंत चिकित्सकों का 28% सरकारी अस्पतालों में नियोजित है। राज्य में वर्तमान में दंत महाविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। भविष्य में 100 से अधिक छात्रों के लिए दंत महाविद्यालय के हॉस्टल का निर्माण करने की भी योजना बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए आगामी 31 मार्च तक राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक करने की समय सीमा खाद्य विभाग ने निर्धारित की है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य त्रिपुरा है, जैसा कि राज्य सरकार ने जानकारी दी है। अब सिर्फ 8 दिन बाकी है, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा उपभोक्ताओं ने KYC पूरा नहीं किया है। इसलिए राज्य सरकार के उद्देश्य में विघ्न आ सकता है। इस पर राशन डीलरों ने तत्काल KYC पूरा करने की अपील की है। আমরা নিজেরা টাকা দিয়ে মাইকিং করতেছি যে আপনারা আসেন, KYCটা করেন, কিন্তু করতেছে না। যেমন আমার এখানে আছে আরো 400-500 করতেছে না। এরকম সারা ত্রিপুরার যে সব রেশনের এই অবস্থা না, বাতিল হইতো না। ডিপার্টমেন্ট আমরা যেটা বলবো যে আপনারা এটা অবশ্যই এটা করতে পারেন। ডিপার্টমেন্ট কিছুদিন পর পরে আমাদের সৃষ্টি করতেছে যে এটা করতে হবে। आंदोलन के नाम पर राज्य के सामान्य लोग चरम जन दुर्व्यवस्था का सामना कर रहे हैं, जिसमें नेशनल हाईवे बंद करना और अगरतला शहर की प्रमुख सड़कों पर नाकाबंदी करना शामिल है। सोमवार को आंदोलन जारी रखने की घोषणा तक की गई है। विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद भाजपा इस मामले में चुप क्यों है, यह भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। हद से ज्यादा तिपरामथा निर्भरता भाजपा के भविष्य के लिए समस्या बन सकती है। इस आशंका का इजहार पार्टी के कुछ जागरूक नेतृत्व ने किया है। इस मुद्दे पर वर्तमान में राजनीतिक हलकों में जोरदार चर्चा हो रही है। पिछले 2 दिनों से भाजपा के सहयोगी तिपरामथा के छात्र संगठन TSF ने रोमन लिपि की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ा है, जिसके कारण राज्य के विभिन्न स्थानों पर अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया है। सड़कों को अवरुद्ध करने के नाम पर मरीजों की एम्बुलेंस सहित आपातकालीन सेवाओं की गाड़ियों को जबरन रोका जा रहा है। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों से लेकर विभिन्न स्तर के परीक्षार्थियों तक को अवरुद्ध किया जा रहा है। और वहीं त्रिपुरा पुलिस, जिसे कभी राष्ट्रपति कलर्स पुरस्कार से नवाजा गया था, वह अब चुपचाप खड़ी होकर इन दृश्यों को देख रही है। उनके पास इन स्थितियों पर कोई कदम उठाने का उपाय नहीं है। आंखों के सामने मरीजों, बच्चों और परीक्षार्थियों के साथ यह अन्याय हो रहा है, फिर भी किसी आश्चर्यजनक कारण से पुलिस कानूनी कदम उठाने में असमर्थ है।
राजनीतिक छाव में छात्र संगठन की अराजकता को देखकर प्रशासन पूरी तरह असहाय हो गया है। हालांकि त्रिपुरा में सुशासन 1 के बाद अब सुशासन 2 चल रहा है और पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। ये हमेशा शासक दल के मंत्री और विधायक प्रचारित करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है, जब आंदोलन के नाम पर अराजकता हो रही है तब पुलिस मूक दर्शक आखिर क्यों बनी हुई है और आम लोग कहां जाएंगे? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा अब तिपरा-मोथा पर अत्यधिक निर्भर हो गई है, जो इस राज्य में उसकी स्थिति को कमजोर दर्शाता है। हालांकि राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या कम होने के बावजूद भाजपा अभी भी बहुमत में है और तिपरा-मोथा का समर्थन वापस लेने से सरकार पर कोई खतरा नहीं होगा। फिर भी भाजपा का तिपरा-मोथा के प्रति लचीला रवैया सामान्य जनता के लिए असमझ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के चुप रहने से यह संकेत मिलता है कि वह कानून का उल्लंघन और अराजकता के बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रही है, खासकर जब आंदोलन के नाम पर एम्बुलेंस और आपातकालीन गाड़ियों को रोका जा रहा है, जो भारत में कहीं और नहीं देखा जाता। वहीं पिछले 2 दिनों से त्रिपुरा में जो अराजकता का माहौल है, अगर यह पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्य में होता तो शायद हाईकोर्ट मामला अपने संज्ञान लेकर आम लोगों के पक्ष में खड़ा हो जाता। लेकिन त्रिपुरा में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, यह भी राज्य के सामान्य लोग सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा ग्रेटर त्रिपुरालैंड के नारे को लेकर जो तिपरा-मोथा का जन्म हुआ था, वह अब मुख्य उद्देश्य को छोड़कर रोमन लिपि पर क्यों जोर दे रही है, यह भी राजनीतिक हलकों में सवाल खड़ा कर रहा है। क्या ग्रेटर त्रिपुरालैंड अब अतीत बन चुका है, यह भी सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। नियुक्ति के घोटाले के आरोप में आखिरकार त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय में पुलिस कार्रवाई की गई। विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर सील लगाई गई है। त्रिपुरा विश्वविद्यालय में नौकरी घोटाले के आरोपों को लेकर आखिरकार राज्य सरकार हरकत में आई है। शनिवार दोपहर के बाद से सूर्यमणि नगर स्थित त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में पुलिस कार्रवाई चली, जो देर रात तक जारी रही। एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल प्रशासनिक भवन में घुस गया। इस मामले में नौकरी परीक्षा के विभिन्न उत्तर पत्रों को पुलिस ने सील कर दिया है। कई दिनों से त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय में नौकरी घोटाले के आरोप लग रहे थे। नौकरी देने के नाम पर बड़ी रकम लेने का मामला स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने नौकरी के नाम पर घूस लेने के आरोप में त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी को गिरफ्तार भी किया है। कुछ और घोटाले भी सामने आए हैं। न केवल नौकरी परीक्षा में बल्कि विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में भी धोखाधड़ी के मामलों को लेकर फरवरी महीने में आमतली थाना पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। कुल मिलाकर उच्च शिक्षा के इस प्रमुख संस्थान के खिलाफ गंभीर आरोप उठ रहे हैं। त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारियों ने रिश्तेदारी बढ़ाने से लेकर नौकरी घोटाले तक के आरोपों में खुद को घिरा पाया है। इस मामले में कुलपति खुद फरार है। त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय की इस प्रकार की गतिविधियों के कारण केंद्रीय मंत्रालय पर भी दाग लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है।
राज्य के सामाजिक आर्थिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए 2025 से 26 वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा आवंटन में वृद्धि की गई है, जिसे आर्थिक विश्लेषक महत्वपूर्ण मानते हैं। सोमवार को त्रिपुरा विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र के दूसरे दिन इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। त्रिपुरा जैसे सीमांत और आर्थिक रूप से कमजोर राज्य में जहां राजस्व वृद्धि की संभावनाएं भी काफी कम हैं, राज्य की आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखना और राज्य को प्रगति की दिशा में ले जाना एक बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से जब आम जनता की मांग लगातार बढ़ रही हो, सामानों की कीमतों में वृद्धि हो रही हो और लोगों की आय के स्रोत धीरे धीरे संकुचित हो रहे हो। तब एक राज्य सरकार कैसे अपनी जिम्मेदारियों को सही दिशा में निभा सकती है, यह एक बड़ा सवाल है। फिर भी 2025 से 26 के लिए 32,423.44 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट पेश किया गया है, जिसमें 13 नई योजना की घोषणा की गई है। इसके अलावा प्रस्तावित बजट में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिन्हें आर्थिक विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण माना है। पहला, राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 9.49% अधिक धन आवंटित किया है। यह कदम डॉक्टर मानिक शाह नेतृत्व वाली सरकार के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। दूसरा, राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 11.94% अधिक बजट आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है, जो राज्य के समग्र विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तीसरा, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने पिछले वर्ष के मुकाबले 12.89% अधिक धन आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे आर्थिक विश्लेषक एक सकारात्मक कदम मानते हैं। कृषि क्षेत्र त्रिपुरा के समग्र विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उच्च उत्पादन वाले फसलों की खेती बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री ने शस्य श्यामला योजना की घोषणा की है, जिसे सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में छात्रों के लिए विज्ञान और अंग्रेजी में प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। बहुत से लोग मानते हैं कि राज्य के छात्रों को उच्च प्रशिक्षण की कमी के कारण अपने एकेडमिक ज्ञान का सही उपयोग करने में कठिनाई होती है। इस संदर्भ में प्रत्येक जिले में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। बजट में अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में बालिका समृद्धि योजना, उन लोगों के लिए भारत माता कैंटीन एवं नाइट शेल्टर, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त आवंटन शामिल है। इसके अलावा 52 ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए भी वित्तीय आवंटन किया गया है। हालांकि विपक्षी दलों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन उन्हें इस बजट को नकारने का कोई अवसर नहीं मिला है। विपक्ष ने बजट को दिशाहीन कहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो योजनाएं पहले से चल रही है उन्हें जारी रखना इस बजट का सकारात्मक पहलू है, ऐसा आर्थिक विश्लेषक मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो काम या परियोजनाएं अभी चल रही हैं उन्हें पूरा किया जाए और इसके माध्यम से जनता को अधिक लाभ प्रदान किया जाए। त्रिपुरा राज्य की वास्तविक स्थिति को देखते हुए स्थिर विकास के लिए निरंतर प्रयास अनिवार्य है। दिल्ली की मदद से विकास योजनाएं शुरू करना और उन्हें लागू करना, यह राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार से जनता की अपेक्षाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अगरतला कोलकाता रूट पर 2 और विमान जोड़ने का निर्णय निजी विमान सेवा प्रदाता इंडिगो ने लिया है। 30 मार्च से यह विमान सेवा शुरू होगी। 30 मार्च से अगरतला कोलकाता रूट पर दोनों दिशा में 2 विमान बढ़ाने का निर्णय इंडिगो ने लिया है। पिछले 1 साल पहले गर्मी के मौसम के विमान कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान इन दोनों विमानों को इस रूट से हटा लिया गया था। 30 मार्च से गर्मी के मौसम के विमान कार्यक्रम के तहत इंडिगो इन दोनों विमानों को फिर से इस रूट पर चालू करेगा।
इसमें एक 78 सीटों वाला ATR विमान और एक 180 सीटों वाला एयरबस शामिल है। हालांकि इस रूट पर इन दोनों विमानों को फिर से चालू करने का ऐलान कर दिया गया है और टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन 2-3 साल पहले अगरतला से शिलांग और आइजॉल के बीच हवाई सेवा को हटाए जाने के बाद इन रूट्स पर फिर से विमान सेवा शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। 30 मार्च से जो ATR विमान फिर से शुरू होगा वह है कोलकाता से 6E7089 जो सुबह 7:15 अगरतला के लिए रवाना होगा और सुबह 8:30 बजे अगरतला पहुंचेगा। अगरतला से लौटने वाला ATR विमान 6E7014 सुबह 8:50 बजे कोलकाता के लिए रवाना होगा और 10:05 बजे कोलकाता पहुंचेगा। इंडिगो का दूसरा ATR विमान कोलकाता से 6E7418 सुबह 6:50 बजे अगरतला के लिए रवाना होगा और 8:05 बजे अगरतला पहुंचेगा। अगरतला से वापसी ATR 6E7419 सुबह 8:25 बजे रवाना होगा और 9:50 बजे कोलकाता पहुंचेगा। इंडिगो का रात का आखिरी विमान 180 सीटों वाला एयरबस कोलकाता से रात 7:45 बजे अगरतला के लिए रवाना होगा और 7:45 बजे अगरतला पहुंचेगा। अगरतला से वापसी 180 सीटों वाला एयरबस 6E6705 रात 8:20 बजे कोलकाता के लिए रवाना होगा और 9:20 बजे कोलकाता पहुंचेगा। दिल्ली से प्रतिदिन चलने वाली 180 सीटों वाली एयरबस का समय भी 30 मार्च से बदला जा रहा है। दिल्ली से प्रतिदिन 6E2206 दोपहर 12:25 बजे सीधे अगरतला के लिए रवाना होगा और 3 बजे अगरतला पहुंच जाएगा। अगरतला से वापसी एयरबस 6E2306 दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगा और शाम 6:15 बजे दिल्ली पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले पहाड़ी लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में कितना सुधार हुआ है, इस पर समीक्षा और अवलोकन करने की आवश्यकता है, ऐसा राज्यवासियों का मानना है। तेलियामुड़ा शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर असम अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग के 18मुड़ा पहाड़ के तलहटी में स्थित 18मुड़ा ADC विलेज के 47 माइल इलाके में PJP कॉलोनी है। इस क्षेत्र में लगभग 40 से 50 परिवारों के जनजाति लोग रहते हैं और वे जंगल की लता पत्तियां बेचकर और झूम कृषि करके अपना पालन पोषण करते हैं। यह लोग प्रतिदिन जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र के अधिकांश लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए असम अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पड़ी ईंटों और मिट्टी को उठाकर उसे तोड़कर चिप्स बनाकर बेचने का काम कर रहे हैं। रास्ते में ईंट उठाकर बेचना इनके पास एकमात्र विकल्प है, क्योंकि इनका कहना है कि खाद्य संकट को दूर करने के लिए वे इस प्रकार के काम करने पर मजबूर है। Bông bọ ya tung maya jeo no mak nai, it po mak nai, je po bata matara po mak nai chula je lain pur kong po je tung mo na mak nai. Paswa? Robi na riang no po. Riang, chuna munga dia, no po maya, dabi daba buria ya. Tak banyak sih kai pigla ini. Agak tung bega chane pura puri msa bukrai, msa klabu. असम अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों किनारों पर ईंट और मिट्टी खोदकर उठाने के कारण रास्ते के कई स्थानों के टूटने का खतरा उत्पन्न हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों का दावा है। BPL कार्ड धारक होने के बावजूद इन लोगों को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है। ना तो वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, ना ही विधवा पेंशन। चुनाव से पहले जनजातियों के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए जनप्रतिनिधियों ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन चुनाव के बाद उन जनप्रतिनिधियों का कोई अता पता नहीं मिलता है, ऐसा दूरदराज के जनजातीय लोगों का कहना है। क्या आया देखो কি কাজ করো তোমরা? আমি তো কাজ করতে পারি না, এটা কিছু रहेगा पहले रहेगा কিছু খায়। ভাতা পাওনি? ভাতা বাতা পাই না। ভাতাও পাও না? না। BPL আসেনি? আছে। তো ভাতা পাও না কেন? বাতা পাইছে না, ওই রান্দি বাতা ওইটাও আমি পাইছে না। মৃত্যু সার্টিফিকেট দিয়ে মুলামি দিছে, ওইটাও পাই না।
বয়স হয়েছে না বুড়ামি অক্ষণ राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों के जीवन यापन के संघर्ष को हल करने में वर्तमान राज्य सरकार और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि क्या भूमिका निभाते हैं, यह अब देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अगरतला सिटी सेंटर के सामने रविवार को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के 95वें शहीदी दिवस को राज्य के वामपंथी संगठनों डीवाईएफआई, टीवाईएफ, एसएफआई और टीएसयू ने मिलकर मनाया। शहीदी दिवस के अवसर पर संगठनों के अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की आत्म बलिदान स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। तात्कालिक ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उनके कृत्यों के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1931 के 23 मार्च को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी थी। तभी से यह दिन भारत में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। डीवाईएफआई संगठन की ओर से यह बताया गया कि भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लक्ष्य के साथ साथ सांप्रदायिकता और साम्राज्यवाद का अंत करने के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया जाना चाहिए। এই স্বপ্নের ভারত, ভগৎ সিংয়ের স্বপ্নের ভারত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডিওএফআই, টিএফ এর যে সংগ্রাম, এই সংগ্রামকে আরো তীব্র করার শপথ নিচ্ছি। সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে তীব্র করার শপথ আজকের দিনে আমরা গোটা দেশে, গোটা রাজ্যে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আমরা ভগৎ সিংয়ের ছবির প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে এই শপথ আমরা গ্রহণ করছি। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি